ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਬੜੇ ਦਿਲਚਸਪ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਵਤਾਰ ਮਤਸਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਹਾਪ੍ਰਲਯ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਨੋਟਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲਣਾ, ਥੋੜਾ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਹ ਪਰਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਮੂਲ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ। ਰਾਜਾ ਸਤਿਅਵਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਨੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੱਛੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਦਿਆਲਤਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੱਛੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ, ਫਿਰ ਵੱਡੇ 'ਚ। ਹਾਂ, ਕਮੰਡਲ, ਫਿਰ ਘੜਾ, ਤਲਾਬ, ਨਦੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਉਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੱਛੀ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮਤਸਿਆ ਅਵਤਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹ ਮਨੂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਹਾਪ੍ਰਲਯ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਪਤਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਸਮੇਂ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੱਛੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਤਪਥ ਬ੍ਰਾਹਮਣ 'ਚ ਮੱਛੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ। ਹਾਂ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਇੱਕ ਕਥਾ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਹਯਗਰੀਵ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੈਂਤ ਨੇ ਵੇਦ ਚੁਰਾ ਲਏ ਸੀ ਤੇ ਮਤਸਿਆ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਦ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ। ਪਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ 'ਚ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨੂਹ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਾਲੀ। ਹਾਂ, ਨੂਹ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਯਹੂਦੀ, ਈਸਾਈ, ਇਸਲਾਮ 'ਚ, ਫਿਰ ਮੈਸੋਪੋਟਾਮੀਆ ਵਿੱਚ ਗਿਲਗਾਮੇਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਯੂਨਾਨ 'ਚ ਡਿਊਕਾਲੀਓਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ 'ਚ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਬਚਦਾ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਾੜ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਰੁਕਣਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਾਂਝ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਕੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਘਟਨਾ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭੂ-ਮਿਥਿਹਾਸ, ਜੀਓਮਿਥੋਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਯਾਦ ਹੋਣ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਬਰਫ਼ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਖੀਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਿਆ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਗਿਲਗਾਮੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ? ਥੋੜੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਮਝ? ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਡੂੰਗੀ ਸਮਝ ਸੀ। ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਿਗਵੇਦ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਆ। ਜਲ ਚੱਕਰ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਵਾਟਰ ਸਾਈਕਲ। ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਭਾਫ਼ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਦਲ ਬਣਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਬਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਰੂਪ ਬਦਲਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ 'ਚ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੋਹਨਜੋਦਾਰੋ ਦਾ ਮਹਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਧੋਲਾਵੀਰਾ ਦੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਤਲਾਬ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਟੈਰਾਕੋਟਾ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ, ਟੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾੜੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਨਤ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਟਿਲਿਆ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ, ਵਰਸ਼ਾਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੀਂਹ ਮਾਪਣ ਲਈ ਵੀ ਯੰਤਰ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਵਰਾਮਿਹਿਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਿਹਤ ਸੰਹਿਤਾ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਲੱਭਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ? ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿਉਂਕ ਦੇ ਭੌਣ, ਦੀਮਕ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਵਾਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂ, ਸਾਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਬਾਲਣਾ, ਕੱਪੜੇ 'ਚੋਂ ਛਾਣਨਾ ਜਾਂ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਸੋਚ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ 10 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਰਵਿਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਸਿਆ, ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੂਰਮ, ਕੱਛੂ-ਕੁੰਮਾ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਵਾਂ ਤੇ, ਫਿਰ ਵਰਾ, ਸੂਰ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਫਿਰ ਨ੍ਰਿਸਿੰਘ, ਅੱਧਾ ਮਨੁੱਖ ਅੱਧਾ ਸ਼ੇਰ, ਇੱਕ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਸਟੇਜ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਮਨ, ਬੌਣਾ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੂਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਰੂਪਾਂ ਵੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕ੍ਰਮ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੋਚ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਤਸਿਆ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ, ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਮਝ ਦੀ ਝਲਕ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵਾਕਈ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਮਿੱਥਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਸਾਡੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਜਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। आज हम एक बहुत ही कदीम और गहरी कहानी से शुरू कर रहे हैं, मत्स्य अवतार की। जी। यानी एक मछली जो एक बादशाह सत्याव्रत को आने वाले एक अजीम सैलाब से खबरदार करती है। बिल्कुल। तो आज हम उन जराए को देख रहे हैं जो इस हिंदू दियोमाई की कहानी और फिर दुनिया भर में जो मिलती जुलती सैलाब की दास्तानें हैं, जी हाँ, और कदीम हिंदुस्तान में पानी के बारे में जो हैरान कुन साइंसी समझबूझ मिलती है, उन सबको जोड़ते हैं। जी। तो आइए देखते हैं ये सब कैसे जुड़ता है। जी, तो बुनियादी कहानी ये है कि बादशाह सत्याव्रत, जो बाद में विवस्वत मनु कहलाए, वो नदी में नहा रहे थे कि उन्हें एक छोटी सी मछली मिली। अच्छा। उन्होंने उसे बचाया और वो मछली उनसे हिफाजत मांगती है। फिर वो हैरान अंगेज तौर पर बड़ी होती जाती है, बहुत बड़ी, मौजिज़े की तरह। बिल्कुल। आखिरकार वो खुद को विष्णु जाहिर करती है और आने वाले प्रलया यानी कायनाती तहलील, एक अजीम सैलाब की खबर देती है। प्रलया, ठीक है। और वो मनु को एक बहुत बड़ी कश्ती बनाने का हुक्म देती है। और ये कोई मामूली कश्ती नहीं थी, है ना? मतलब इसमें सिर्फ मनु का खानदानी नहीं था। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें सप्त ऋषि यानी 7 अजीम दानिश्वर, तमाम पौधों के बीज और हर किस्म के जानवरों के जोड़े भी शामिल थे। वाह। मकसद ये था कि सैलाब के बाद जमीन पर जिंदगी और वो इल्म को दोबारा कायम किया जा सके। तो ये तो एक तरह का, जैसे आपने कहा, हयातियाती और इल्मी खजाना बचाने का मिशन था। जबरदस्त। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प बात यह है कि ये कहानी वक्त के साथ कैसे बदली। अच्छा, कैसे? देखें, जो इब्तिदाई जराए हैं जैसे शतपथ ब्राह्मण, जो वेदों के बाद की एक अहम तहरीर है, जी, उसमें ये बुनियादी तौर पर एक बचाओ एक बका की कहानी है। लेकिन बाद में महाभारत और खास तौर पर पुराणों में जैसे भागवत पुराण, हाँ, वहाँ ये वाज़ेह तौर पर विष्णु की कहानी बन जाती है। अब मछली सिर्फ एक मछली नहीं, वो विष्णु का अवतार है। ओह, ठीक। और उसका मकसद भी दोहरा हो जाता है, एक तो मनु और बाकी मखलूकात को बचाना, और दूसरा वो हयाग्रीव नामी एक आसुर से चोरी शुदा वेदों यानी इलाही इल्म को वापस लाना। हयाग्रीव, घोड़े के सर वाला असुर? जी वही। तो इस तरह कहानी का दायरा एक फर्द की बका से बढ़कर पूरी कायनात, माहौलियात और इल्म के तहफ्फुज़ तक फैल जाता है। और फन में भी इसकी तस्वीरकशी मुख्तलिफ है, कभी पूरी मछली, कभी आधा इंसान आधी मछली। जी बिल्कुल। आधे इंसान वाले रूप में विष्णु का ऊपरी धड़ होता है, उनके मखसूस निशानात के साथ शंख, चक्र, गदा और पद्म। सही। अच्छा, अब ये तो हुई मत्स्य अवतार की बात, लेकिन आपने कहा कि ऐसी कहानियां दुनिया भर में हैं। जी हाँ, ये बहुत हैरानकुन है। मत्स्य और मनु की कहानी और दूसरी सकाफतों की सैलाब की कहानियों में बहुत ज्यादा मुमासलतें हैं। मसलन? देखें, बाइबल और कुरान में नूह की कश्ती की कहानी। हाँ, वो तो सबसे मशहूर है। जी। फिर मेसोपोटामिया की गिलगामेश दास्तान में इतनापिश्तुम की कहानी है। यूनानी देवमाला में ड्यूकालीन का सैलाब है। अच्छा, यूनानियों में भी? जी, यहाँ तक के एज़टेक रिवायात में और बुद्ध मत की समुद्रा वंजना जातक में भी, हालांकि वो कहानी एक जजीरे तक महदूद थी। तो इन सब में मुश्तरक क्या है? मतलब क्या चीजें हैं जो बार बार आती हैं? उमूमन एक खुदाई अंतबा होता है या किसी किस्म की नाराजगी। फिर एक नेक शख्स को चुना जाता है जो बच जाएगा। ठीक। उसे कश्ती बनाने का हुक्म मिलता है, वो जिंदगी को यानी इंसानों और जानवरों को महफूज करता है। और फिर सैलाब के बाद जमीन दोबारा आबाद होती है। बिल्कुल। और अक्सर कहानियों में कश्ती किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी पर जाकर ठहरती है। ये तो वाकई काफी मिलती जुलती बातें हैं। यहीं पर जियोमिथोलॉजी का तस्वर सामने आता है। जियोमिथोलॉजी? ये क्या है? ये एक नजरिया है कि शायद ये कदीम दास्तानें वो हकीकी बड़े पैमाने के जुग्राफियाई वाकयात की यादें हैं। अच्छा, जैसे कि? मिसाल के तौर पर कुछ तहकीक ये बताती है कि पिछले बर्फानी दौर के आखिर में शायद कोई 7000 साल पहले बहिरा अस्वद के इलाके में एक बहुत बड़ा सैलाब आया था। तो हो सकता है कि इन कहानियों की बुनियाद कोई ऐसा ही हकीकी वाकया हो। जी, ये मुमकिन है। ये एक दिलचस्प जाविया है सोचने का। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हो गई कहानियां और उनके मुमकिन तारीखी रवाबत। अब अगर हम वापस पानी के मौजू पर आएं, जी, तो ये हैरान कुन नहीं कि जिस सकाफत ने सैलाब की इतनी जामे कहानी बयान की, वो पानी के इल्म में भी गहरी बसीरत रखती थी। यकीनन। और ये बात बहुत नुमाया है। कदीम हिंदुस्तानी मतून जैसे वेद हैं, पुराण हैं, हत्ता के रामायण में भी आपको आबी चक्कर यानी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की जो समझ मिलती है, वो जदीद साइंस के काफी करीब है। सच में? मिसाल के तौर पर? जैसे ऋग्वेद और लिंग पुराण में जिक्र है कि सूरज की शुआएं पानी को बुखारात बनाती हैं यानी इवेपोरेशन। जी। और ये कि पानी खत्म नहीं होता, सिर्फ अपनी शक्ल बदलता है। ये कंजर्वेशन ऑफ मैटर का बुनियादी उसूल है। कमाल है। और बादल बनने वगैरह का भी जिक्र है? जी हाँ,
वायु पुराण में तो बादलों की मुख्तलिफ अक़साम तक बयान की गई हैं और ये भी कि कौन से बादल बारिश लाते हैं, ये गहरे मुशाहिदे की अलामत है। सिर्फ मुशाहिदा नहीं लगता है, अमली इतलाक भी था। मैंने कहीं पढ़ा था कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र जी, जो तकरीबन 400 कबले मिसी का है, और पाणिनि की अष्टाध्यायी जो इससे भी पुरानी तकरीबन 700 कबले मिसी, इनमें वर्षामान यानी बारिश नापने वाले आलात का जिक्र है। बिल्कुल दुरुस्त। ये कदीम हिंदुस्तान में पानी की पैमाइश और इंतजाम की तरक्की याफ्ता समझ को जाहिर करता है। ये तो बहुत बहुत पहले की बात है जी, और खास तौर पर वराहा महर की बृहत संहिता जो 6ठी सदी ईस्वी की एक जामे किताब है, वो तो कमाल की है। इसमें क्या खास है? इसमें जेरे जमीन पानी तलाश करने की बहुत तफसीली टेक्निकें बताई गई हैं। जेरे जमीन पानी कैसे? वो बताते हैं कि मखसूस किस्म के पौधों, दीमक के टीलों, दीमक के टीले, चाहिए अच्छा, और मिट्टी की किस्म, चट्टानों की बनावट, इन सब को देखकर कैसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी कहाँ और कितनी गहराई में मिलेगा। ये तो हैरत अंगेज है। और बड़े पैमाने पर पानी का इंतजाम, जैसे डैम या नहरें? जी हाँ, उसके भी शवाहिद हैं। वादिये सिंध की तहजीब के निकासी आब के निजाम तो मशहूर है ही। बिल्कुल। इसके अलावा मौर्य दौर में गुजरात की सुदर्शन झील जैसे डैम और नहरों का जिक्र मिलता है। पानी साफ करने के तरीकों का भी जिक्र है, जैसे उबालना या छानना। तो ये सब एक मरबूत निजाम की तरफ इशारा करता है। तो खुलासा ये है कि मत्स्य अवतार की कहानी सिर्फ एक देमालाई दास्तान नहीं है, ये आलमी सतह पर सैलाब की मुश्तरिका यादों से जुड़ती है, कायनात के चक्कर यानी प्रलया के वसी तस्वुरात की अक्कासी करती है, और एक ऐसी तहजीब की निशानदेही करती है जिसने न सिर्फ कायनाती वाकयात पर गौर किया, बल्कि पानी और माहौलियात का गहरा मुशाहदाती और अमली इल्म भी हासिल किया। यानी ये महज इत्तेफाक नहीं कि सैलाब की अजीम कहानी और पानी का गहरा इल्म एक ही जगह पाए जाते हैं। जी, ऐसा लगता तो नहीं। तो ये सब जानकर ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये कदीम दास्तानें और ये साइंसी बसीरतें जिन्हें हम अक्सर अलग अलग खानों में रखते हैं, वो आज हमारे जो माहौलियाती चैलेंजेस हैं उनको समझने और अपनी तारीख को एक नए जाविये से देखने में कैसे मददगार हो सकती हैं। ये वाकई एक अहम सवाल है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञान और धर्म के सागर में आस्था की नाव पर सवार होकर चलिए आज चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां प्रलय का अंधकार है तो वहीं आशा का एक टिमटिमाता दीप भी। क्या हो जब पूरी सृष्टि जलमग्न हो जाए, जब विनाश का महासागर सब कुछ निगलने को तैयार हो। कल्पना कीजिए एक ऐसी मछली की जो कोई साधारण जीव नहीं बल्कि स्वयं सृष्टि के पालक का रूप हो। आज हम कथा सुनाएंगे भगवान विष्णु के पहले अवतार मत्स्य अवतार की। ये कहानी है एक राजा की करुणा की, एक मछली के अद्भुत रहस्य की और उस महाप्रलय की जिसने सृष्टि को समाप्त करने की ठानी थी। सत्य युग में द्रविड़ देश पर सत्यव्रत नाम के एक धर्मात्मा राजा राज करते थे जो बाद में वैवस्वत मनु कहलाए। एक दिन जब वो कृतमला नदी में तर्पण कर रहे थे तो उनकी अंजुली में एक छोटी सी मछली आ गई। मछली ने राजा से अपने प्राणों की रक्षा की भीख मांगी। दयालु राजा उसे अपने कमंडल में रखकर महल ले आए, लेकिन एक ही रात में वो मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल छोटा पड़ गया। राजा ने उसे एक मटके में रखा, फिर तालाब में, फिर नदी में और अंत में समुद्र में छोड़ दिया। हर बार मछली का आकार चमत्कारिक रूप से बढ़ता गया। तब राजा सत्यव्रत समझ गए कि ये कोई साधारण जीव नहीं। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और तब उस सुनहरी मछली के रूप में स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने राजा को बताया कि आज से 7वें दिन पृथ्वी पर महाप्रलय आने वाला है, समुद्र सब कुछ डुबो देगा। भगवान ने सत्यव्रत को एक विशाल नाव बनाने का आदेश दिया और कहा कि वे सप्तऋषियों, सभी प्राणियों के जोड़ों और समस्त औषधियों और बीजों को लेकर उस नाव पर सवार हो जाएं। जब प्रलय का समय आया, भयंकर वर्षा होने लगी और समुद्र उफनने लगा। तब भगवान विष्णु एक विशाल सुनहरी सींग वाली मछली के रूप में प्रकट हुए। मनु ने वासुकी नाग को रस्सी बनाकर नाव को भगवान के सींग से बांध दिया। उस अथाह जल राशि में भगवान मत्स्य उनकी नाव को सुरक्षित खींचते रहे। इसी दौरान ब्रह्मा जी की नींद का फायदा उठाकर हयग्रीव नामक एक दैत्य वेदों को चुराकर पाताल में ले गया था। तब भगवान मत्स्य ने उस दैत्य का वध किया, वेदों को पुनः प्राप्त किया और ब्रह्मा जी को सौंप दिया। प्रलय समाप्त होने पर भगवान ने मनु की नाव को हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर स्थापित किया और फिर उन्हीं मनु, सप्तऋषियों और जीव जंतुओं से नए युग की सृष्टि का आरंभ हुआ। ये कथा सिखाती है कि करुणा और धर्म का एक छोटा सा बीज भी आपको हर प्रलय से बचा सकता है। भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हमें बताता है कि जब जब ज्ञान और धर्म पर संकट आता है तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में हमारी रक्षा के लिए अवश्य आते हैं। तो कैसी लगी आपको ये अद्भुत कथा? कमेंट्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा और ऐसी ही दिव्य कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए रहस्य और ढेर सारी आस्था के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए और अच्छाई के मार्ग पर चलते रहिए। श्री हरि शरणम।